Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Aries Ascendant and how the month of November 22 is going to pan out for the Aries Ascendant people. We will first start with the Ascendant Lord. The Ascendant Lord Mars is retro in the month of November and it is going to remain in the third house till 13th of November. And after this, it will move back to the second house where it is going to remain positive for the rest of the month. Now, since the Ascendant Lord is retrograde, it is going to bring stagnation related to the areas that are shown by the second house. And since it is Mars, you would like to move very fast on the matters that are related to family and wealth in the month of November. But Mars in retro position will delay the things that you want, and this will cause frustration for all of you. The key here is to remain patient and keep on doing efforts. Good part is Mars will be passing through its own constellation, and as a result you will then see good results in the month of November. Now there is an important exchange that is taking place in the month of November. Mars and Venus are exchanging signs, and as a result you are going to observe very strong results of the eighth house, because the other two planets Mercury and Sun are also going to remain positive in the eighth house. So both these houses are exchanging the signs. In general, whenever you have a quadrant and a trine exchanging houses, then it is normally considered very good and you get good results of both the houses. In this case, one of the houses, eighth house, is a difficult house, so it is better that you utilize this house in a positive way in the month of November. So you engage yourself in any kind of a research if you happen to have a research oriented mindset. Otherwise, you can learn astrology in this month, and by this way also you will be able to negate any harmful effects or energies of the eighth house. Now, another problem that happens is that Venus is associated with vehicles and Mars is associated with quickness, energy, and impulsive nature. In this case, since both of them are exchanging signs and Venus is getting posited in the eighth house also denotes accidents. So it will be very, very good for you if you avoid driving a vehicle, ask someone else to drive it for you in the month of November. And if it is an unavoidable situation, then you should drive your vehicle very carefully, because this kind of a combination may lead to a road accident. And this is something which should be avoided. Since most of the energy is going to be focused on the eighth house, it makes much more sense for you to utilize this house in a positive way. Now we will also look at the other planets one by one. Saturn will continue to remain positive in the 10th house, and this Saturn is going to prove to be a taskmaster for you. In this case, the stress on the work front will continue to remain, and this situation will exist till January 2023. The only way to address this Saturn is to work extremely hard in the work sphere. So many times you will feel that you should leave your job at this point of time and do something else. But I would suggest not to take such hasty decisions, and you should slog it out, howsoever difficult the work environment becomes. And one of the antidotes also is to feed poor people. By that way, Saturn is going to give you the benefits in your professional arena. Now, fifth house lord is Sun, and it is also passing through the eighth house. It will remain in the seventh house till 17th of November, and where it is going to get associated with Ketu, and after this it is going to move to the eighth house. So in the month of November, people who are involved in sectors related to education, arts, advertising and speculation, these people will continue to struggle on the work front. In the first half of the month, when Sun is getting associated with Ketu, then these people will feel detached from their work, and in the later half of the month it will prove to be a hurdle for speculators, because 8th house is also the house of sudden losses. So people who are pursuing speculation as a vocation, they need to be very cautious in the month of November. Jupiter is the lord of ninth house and 12th house, and it is passing through the 12th house. This Jupiter will continue to support traveling to religious places or foreign countries. And in the month of November, Jupiter will continue to pass through the star of Mars. So if you are a Aries ascendant person passing through Jupiter's MD, then you will see very good result on the work front in the month of November.
because Jupiter will also give results of Saturn. But otherwise, this Jupiter is more suitable for initiating religious works or foreign travels. Venus is occupying 8th house, as I said earlier, and this exchange that is going to take place would also mean that the second half of November will see inflow of money. Why? Because this exchange would mean that Venus will also be giving results of the second house, which is a self-earned wealth, and Venus again is a denoter of luxury. So you will see some money coming in, and the good part is if you address these negative energies of 8th house, then your money flow will get enhanced even further. If you are undergoing a Venus MD or Venus is featuring in your AD, then also a good cash flow will be seen in the second half of November. Now, Mercury is not a beneficial planet for Aries ascendant because it owns two difficult houses, third house and sixth house. So starting from 14th of November, Mercury will be again in the 8th house along with Venus. And in this case, these three planets are also going to get aspected by Mars and Jupiter. Jupiter is going to aspect through the ninth aspect, Mars is aspecting through the seventh aspect. So as I said earlier, 8th house becomes exceptionally powerful. So people who are in service, they will experience difficulties in the second half of November because the sixth house lord will transition through the 8th house. But if you are in jobs that are related to research, manufacturing, information technology, or any kind of work that involves technology, then this will turn out to be a good time for you. You also need to watch out for your health in the second half of November, especially such transits. Sixth house lord going through the eighth house gives rise to diseases below the waist. So you also need to monitor this aspect. Ketu is going to be stationed in the seventh house and it is going to make you disconnected from your spouse. And these differences with your spouse will continue to arise till the time Ketu is stationed here till November 2023. It is all about changing your own perspective, but instead of that, this Ketu makes us detach from the thing. So we don't make any effort towards either changing our perspective or even asking our spouse to change his or her perspective. And Rahu is stationed in the first house, so you are running towards the material side. Ketu, your spouse, is running towards the spiritual side. So this is a very difficult combination to handle. Now, so there are certain dates when you need to be very cautious in the month of November. And these are the dates when moon passes through your 6th, 8th and 12th house. So the dates where you need to be cautious are 5th and 6th of November, 19th to 24th of November. This is the another time frame when you need to be very cautious in the month of November. So there are certain things that you need to look out for. First, be very careful for your health in the second half of November and try to address this negative energy of 8th house by either availing an insurance policy, initiating some research of your own, or at least learn astrology. This will help you to mitigate these negative energies. Otherwise, it will cause a trouble with your health. So that is overall how the month of November looks for Aries ascendant people. So I would request you to subscribe to my channel if you have liked this video, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मेष लग्न वालों के लिए नवंबर 2022 का महीना किस तरह से साबित होगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश की बात करते हैं। लग्नेश मंगल इस समय वक्री अवस्था में रहेंगे नवंबर में, और 13 नवंबर तक वो तृतीय भाव में रहेंगे। इसके बाद बचे हुए महीने के लिए वो द्वितीय भाव में आ जाएंगे, और द्वितीय भाव से आप अपना परिवार, वाणी और अपना स्वयं का स्वार्जित धन देखते हैं। यहाँ पर नवंबर में जो बात हो रही है 13 नवंबर के बाद, वो ये है कि शुक्र और मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है। मंगल शुक्र की राशि में बैठेंगे, शुक्र मंगल की राशि में बैठेंगे। तो आमतौर पर क्या होता है कि अगर इस तरह का आपका परिवर्तन केंद्र या त्रिकोण स्थानों में होता है, यानी कि लग्न भाव का स्वामी चतुर्थ में बैठ जाए, चतुर्थ का लग्न में बैठ जाए, या फिर पंचम भाव का स्वामी दशम में बैठ जाए, दशम का पंचम में बैठ जाए, तो कहीं पर भी अगर केंद्र और त्रिकोण का इस तरह का परिवर्तन योग होता है तो उसको महापरिवर्तन योग बोलते हैं। तो यहाँ पर वो वैसी स्थिति नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक दूस्थान अष्टम भाव इन्वॉल्व हो गया है। इसीलिए आपको जो चीज़ों के प्रति सावधान रहना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए कि मंगल
और शुक्र का जब राशि परिवर्तन हो रहा है तो शुक्र व्यक्ति की अय्याशी को दिखाता है, या जो भी उसको लग्जरी मिलेगी जीवन में वो दिखाता है। तो यहाँ पे अष्टम भाव से वो जा रहा है। अष्टम भाव एक्सीडेंट्स का स्थान होता है, जो भी सडन, जिसको दुर्घटना बोलते हैं उसका। और शुक्र व्यक्ति की गाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे मंगल आपको गति दिखाता है। तो खाली मेष लग्न वालों को ही इस एक्सचेंज में बहुत सावधान रहना चाहिए और गाड़ी को बहुत धीमे चलाना चाहिए इस महीने में। अगर हो सकता है तो आप किसी और को गाड़ी चलाने को बोलिए, आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में व्यक्ति की स्पीड बढ़ जाती है बिना उसके रियलाइज किए, और उसका एक्सीडेंट वगैरह हो बैठता है। तो इसमें आप सावधानी बरतिए। अभी यहाँ पे और क्या चीजें हो रही हैं, अष्टम भाव में तीन तीन ग्रह बैठे हुए हैं, शुक्र बुध और सूर्य, और यहाँ पे दो ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। मंगल सातवीं दृष्टि से देखेंगे और गुरु नवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, 13 नवंबर से लेके महीने के आखिरी तक। तो यहाँ पे अष्टम भाव बहुत ज्यादा मजबूत हो जाता है, और अष्टम भाव हम जानते हैं कि ये पीड़ा का स्थान होता है। तो यहाँ पे इस भाव की आपको नेगेटिव ऊर्जा को एड्रेस करना पड़ेगा। तो या तो अगर आप रिसर्च करते हैं, कोई भी अगर आप रिसर्चर हैं, तब तो ठीक है कि आप इसकी एनर्जी को एड्रेस कर पाएंगे। नहीं तो आप इस समय में ज्योतिष सीखने का प्रयत्न कीजिए, या आप अगर कहीं मैन्युफैक्चरिंग या टेक्नोलॉजी वाले जॉब में हैं तो भी आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि उसमें भी आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय करते रहेंगे। लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखते हैं तो भी काफी आपको इस समय में लाभ मिल सकता है। आपको कैसे भी करके यहाँ की नेगेटिव ऊर्जा को इस्तेमाल करना पड़ेगा नवंबर के महीने में। तो यहाँ पे अगर आप बाकी ग्रहों को भी देखेंगे तो सूर्य भी यहीं बैठे हुए हैं। सूर्य पंचम भाव का स्वामी है, तो पंचम भाव का स्थान का स्वामी का अष्टम भाव में बैठना, यानी कि जितने भी लोग शेयर मार्केट में हैं उनको नवंबर में इस बाजार से दूर रहना चाहिए। जितने भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं या आर्ट से संबंधित व्यवसायों में हैं उनके लिए भी ये समय मुश्किल रहेगा, क्योंकि यहाँ पर पंचमेश का अष्टम में जाना यानी कि दिक्कत वाली चीज होते हो रही है। और यहाँ पे आप देखिए तो सारे ग्रहों की आपस में भी युति बन रही है। शुक्र भी 60 डिग्री का है, बुध 6 का है, सूर्य 1 का है, और ये ज्यादा डिग्री में प्रोग्रेस करेंगे नहीं। तो आपको 10-12 दिन तक तो इन ग्रहों की युति मिलती हुई दिखेगी। सारे ही ग्रह तेजी से मूव करने वाले भी हैं। तो ये समय, अगर आप सट्टेबाजी में हैं तो दूर रहने का अच्छा समय है मार्केट से। अच्छा, महीने के पहले हाफ में भी, क्योंकि सूर्य यहाँ 17 नवंबर को आएंगे तो 16 नवंबर तक भी वो केतु के साथ बैठे रहेंगे, तो यहाँ पर भी सूर्य केतु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा तो इन व्यक्तियों का मन नहीं लगेगा पहले हाफ में नवंबर में अपने काम में, और दूसरे हाफ में मन लगना शुरू होगा तो नुकसान होने की ज़्यादा संभावना है। तो ये थोड़ा सा मुश्किल समय रहेगा अगर आप पंचम भाव से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं तो उसके लिए। यहाँ पे बुध भी तृतीय और छठवें भाव के स्वामी बनते हैं, तो बुध वैसे भी अच्छा ग्रह नहीं कहलाता मेष लग्न वालों के लिए, और यहाँ पे इसका स्वामी भी अष्टम भाव में जा रहा है। तो छठवां भाव आपकी सर्विस को भी दिखाता है, तो छठवें भाव का स्वामी का आठवें भाव में जाना, यानी अगर आप अष्टम भाव से ही जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, यानी अगर आप रिसर्च में हैं या आप इंश्योरेंस में है, टैक्सेशन में है, तो ये ठीक है, क्योंकि आप अष्टम भाव का ही काम करेंगे। नहीं तो फिर ये मरकरी आपको सर्विस में भी चैन से नहीं बैठने देगा, और आपको दिक्कत आएगी सेकेंड हाफ में। 14 नवंबर के बाद आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, क्योंकि मार्स की भी दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान देने योग्य है वो है छठवें भाव का स्वामी अष्टम भाव में जा रहा है, यानी कि आपका हेल्थ हेल्थ भाव का स्वामी अष्टम में चला जाएगा। यहाँ पे कमर से नीचे वाले जितने भी भाग होते हैं उनमें बीमारी होने की ये संभावना देता है, खास करके प्राइवेट पार्ट्स में वगैरह दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पे आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप नेगेटिव एनर्जी का इस्तेमाल कर लेते हैं अष्टम भाव का, तो काफ़ी हद तक आपके लिए महीना अच्छा रहेगा, और तरीके मैंने आपको अभी बता ही दिए हैं। नहीं तो फिर ये इस तरह का प्लेसमेंट व्यक्ति के हेल्थ के साथ खेलने वाला प्लेसमेंट हो जाता है। शनि यहाँ पे दशम भाव से मूव करते रहेंगे नवंबर में, और मंगल के ही नक्षत्र से गुजर रहे हैं, धनिष्ठ नक्षत्र से। तो यहाँ पर ये आपको काफी जी तोड़ के मेहनत करवाएंगे, क्योंकि शनि का ये यहाँ पे बैठना, यानी आपको जनवरी 2023 तक कार्यस्थल पे काफी चैलेंजेस आएंगे और आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपके पास और कोई उपाय नहीं है। अगर आप नौकरी छोड़ेंगे तो बाद में पछताएंगे, तो उससे बेहतर है कि यहाँ पर ही लगे रहिए अपने काम में, और आप अपनी स्थिति को अपने हार्डवर्क से ही इस समय में सुधार पाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो काम आती है वो ये है कि आप गरीबों की मदद कीजिए, दान पुण्य कीजिए, उनको कुछ खाना वाना खिलाइए जो खाना आप स्वयं खाते हैं वो, तो भी ये शनि काफ़ी हद तक आपको नेगेटिव रिजल्ट देने से बच जाएगा। पर मेहनत करने के अलावा यहाँ पे और कोई उपाय है नहीं।
इस तरह का जब भी प्लेसमेंट आता है, द्वितीय और अष्टम भाव के स्वामियों का जब भी राशि परिवर्तन होता है, तो व्यक्ति के फाइनेंशियल पोजीशन में काफी उतार चढ़ाव आते हैं। और यहाँ पर अष्टम भाव का अगर आप ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो द्वितीय भाव में आपको शुक्र से जुड़ी हुई चीजों से धन प्राप्ति की संभावना भी बहुत बढ़ जाती है। इसलिए आपका पूरा फोकस यहाँ की एनर्जी को यूटिलाइज करने में होना चाहिए नवंबर के महीने में। गुरु भी 12वें भाव से भ्रमण कर रहे हो, गुरु 12वें भाव से जाता हुआ भी खर्चा करवाता है। तो यहाँ पे 9वें और 12वें भाव के स्वामी होने की वजह से गुरु आपको कहीं पर भी रिलीजियस ट्रैवल करने के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन बना रहे हो। और अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है तो आपका इस समय में फॉरेन ट्रैवल भी हो सकता है। यहाँ पे गुरु शनि के नक्षत्र से गुजर रहे हैं तो शनि का भी रिजल्ट देंगे वो, तो दशम भाव का भी आपको गुरु अच्छा परिणाम देगा। तो जिनकी भी गुरु की महादशा चल रही है उनके लिए ये कार्यस्थल पे भी अच्छा समय रहेगा। और द्वितीय हाफ में अगर आप अष्टम भाव की ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेते हैं तो अच्छा पैसा बनने की भी संभावना रहती है। राहु केतु का तो भ्रमण यहाँ से जाता हुआ यानी आपके मैरिड लाइफ में अपने पति या पत्नी के साथ मतभेद कराने का काम करता है, क्योंकि केतु यहाँ पे बैठ के आपके पति या पत्नी को धार्मिक बनाता है और आपके लग्न स्थान का राहु आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ लेके जाता है, व्यक्ति को बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाता है। तो अब वो पूरे हो पाते हैं कि नहीं ये तो आपके महादशा अंतरदशा पर भी निर्भर करता है। लेकिन ये प्लेसमेंट हमेशा व्यक्ति के लिए चैलेंजेस लेकर ही आता है, क्योंकि राहु मृग तृष्णा का ग्रह है, आपको सपने दिखाता है और फिर वो टूटते हैं तो व्यक्ति को बड़ी तकलीफ होती है। तो यहाँ पे अगर आप राजनीति में हैं तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि राहु यहाँ पे बैठ के व्यक्ति को षड्यंत्र करने का भी वो देता है कैपेबिलिटी, और वो तो पॉलिटिक्स में चाहिए ही होती है। यहाँ पे राहु जब भी बैठता है तो व्यक्ति कुछ भी करके पावर ग्रैब करने का प्रयत्न करता है। तो पॉलिटिक्स में रहने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, बट अदरवाइज बाकी प्रोफेशंस के लिए कुछ खास अच्छा नहीं होता प्लेसमेंट। अभी कुछ आपको ऐसे दिन है जब आपको सावधान रहना चाहिए नवंबर के महीने में। तो मेष लग्न वालों के लिए वो दिन है 5 और 6 नवंबर और 19 से 24 नवंबर। इन दिनों में आप सावधान रहिए, ये समय थोड़ा सा ट्रिकी होगा। आपको अगर कोई क्रूशल डिसीजन लेना है तो इन दिनों में आप लेना टालिए। दूसरी बात यह है कि आपको सेकेंड हाफ में नवंबर के काफ़ी सावधान रहना है अपनी हेल्थ के प्रति। और कैसे भी करके जैसा मैंने बताया, या तो रिसर्च कीजिए, ज्योतिष सीखिए, इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदिए। तो आप अगर अगर आप अष्टम भाव से जुड़ा हुआ ही व्यवसाय करते हैं, टेक्नोलॉजी आईटी वगैरह से जुड़े हैं, या डिफेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, या फिर सेना में हैं, तो भी ये समय आपके लिए अच्छा निकलेगा, फिर कोई इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो ये आपका समरी है नवंबर महीने का। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।